وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول کی سربراہی میں پی پی وفد کی ملاقات، پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور پاکستانی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے خلاف ہر دم تیار ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے، بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنا مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو، وزیر اعظم کا پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، امن کا عزم برقرار رکھنا، لیکن خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیع کا جی ایچ کیو میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال، کہا دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے، بلوچستان میں جاری اقدامات کے حوالے سے غلط بیانی کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو یہ اعلان جنگ ہوگا، قومی اسمبلی میں بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا بھارت مختلف ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے، عالمی برادری بھارت کو دہشت گردی پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اور موجودہ حالات پر ایوان کو بریفنگ دینی چاہیے تھی، آج اجلاس بلایا گیا، سنجیدگی نظر نہیں آئی، اس ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ، ایوان سے باہر چلے گئے۔ بھارت کی آبی جارحیت، دریائے چناب کا پانی روک لیا، 47 معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی، ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ صرف 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت بگلیہار ڈیم میں پانی جمع کر رہا ہے، چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت سے مل کر کام کرے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے واقعے کی شفاف، غیر جانبدار، بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا، کہا پاکستان کو بغیر ثبوت واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ حکومت کی اولین ترجیح ملک کی اقتصادی ترقی ہے، پاکستان کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن کو خطرہ ہو۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے برطانیہ کو شمولیت کی بھی دعوت دی، کہا برطانیہ خطے میں کشیدہ صورتحال بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا، پاکستان کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ صدر سلامتی کونسل کا کہنا ہے خطے میں بڑھتی کشیدگی باعث تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا جارحانہ بھارتی اقدامات، اشتعال انگیزی اور بیانات سے آگاہ کیا جائے گا، خصوصی طور پر 47 معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ پاکستان پہل نہیں کرے گا، کسی بھی جارحیت کا قومی عزم اور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں خبر تھی بھارت 29 اور 30 اپریل کی رات کو حملہ کرے گا، ہماری افواج نے بھارت کے حملے کو ناکام بنا دیا، بھارتی طیارے سری نگر میں لینڈ کر گئے۔ پہلگام ڈرامے کا مقصد بھارت میں جاری تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے، عالمی برادری خطے کی صورتحال کا نوٹس لے۔ را کی خفیہ دستاویز میں پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن سے متعلق مزید انکشافات، منصوبہ ایکس 322 کی دستاویز لیک ہونے سے دنیا میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق پہلگام واقعہ کر کے را نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے، آزاد کشمیر میں فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا۔ کالعدم BLA BNA کے ذریعے گیس تنصیبات، فوجی قافلوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی بنائی گئی۔ سازش میں پاکستانی سیکیورٹی اداروں پر حملے، علیحدگی پسند بلوچ سے رابطے، 47 معاہدے کی منسوخی شامل تھی۔ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کو مشرقی سرحد پر الجھانا تھا۔
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमराह लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों के मुबैना कैंपों का भारत का इल्ज़ाम झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त है। आज़ाद कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ सामने हैं। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया और दो टोक कहा, भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़्म का आदा है। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने कहा, दोनों ममालिक आहनी बिरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। शरह सूद में 1% कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12 से कम होकर 11% हो गए। वजीर आजम का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। कारोबार, ज़राअत, बरामदात के लिए खुशाइन करार दिया। कहा, ताजिरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। मईशत की बहाली के लिए वजीर खजाना और उनकी टीम की कोशिशें लायक तहसीन हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 3.3% रही। मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस, जबकि तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ डॉलर रही। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस मिसाइल जमीन से जमीन पर हदफ को 120 किलोमीटर दूर तक कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है, मिसाइल के ऑपरेशनल और टेक्निकल उमूर समेत नेविगेशन सिस्टम का मुशाहिदा किया गया। मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, तरबियती लॉन्च की कामयाबी से वाज़ेह हो गया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वजीर आजम का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, मुल्क की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। भारतीय सिख ने मेजर गौरव आर्या की असलियत खोल दी। बोले, पंजाब की 2 बटालियन की नफरी गुजरात बॉर्डर पर खड़ी कर दो तो गौरव आर्या जैसे लोग अपनी धोती छोड़कर भाग जाएंगे। जंग के हालात हों तो गौरव आर्या जैसे लोग साबुन खा लेते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए जब भी बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी, वहां सिखों ने मुकाबला किया। जिन्ना हाउस का गेट फलांग कर गए थे या अंदर से किसी ने खोला था? जिन्ना हाउस का गेट अंदर से किसी ने खोला तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। जस्टिस मुस्तरद हिलारी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या 9 मई को जो हुआ वो जुर्म की नीयत से हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा, 9 मई को जो हुआ वो जुर्म ही था। तमाम वाकयात इत्तफाकिया नहीं थे। रात 9 बजे तक पूरी कोर गैर फाल हो चुकी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? अटॉर्नी जनरल ने बताया, 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मरात रिटायर किया गया। रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इसका मतलब है उन्हें मजीद तरक्की नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, जो इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। सिंध में सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब कल होगा। सिंध असेंबली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की तरसील कर दी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MKM की निगहत मिर्जा में मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से खालिद मकबूल की क़यादत में MQM के अरकान असेंबली की मुलाकात। अपने अपने हलकों के अवामी मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से आगाह किया। गवर्नर ने मसाइल के हल में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सूबाई हुकूमत से उम्मीद नहीं है। अरकान असेंबली अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद करें।
MQM सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास से गुफ्तगू में खालिद मकबूल ने कहा 22 अगस्त के बाद सियासी कम फहमी का शिकार चंद लोगों ने तासुर लिया, MQM खत्म हो गई, साबित किया हमारा वजूद हमारे हुकूक की जंग से जुड़ा। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत मजीद 3.33% गिर गई। लंदन ब्रेंट की कीमत $2.04 कमी से $59.25 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $2.10 कमी से $56.19 फी बैरल पर आ गई। रॉयटर्स के मुताबिक ओपेक प्लस ममालिक का मुसलसल दूसरे महीने तेल की पैदावार में इजाफे पर इत्तफाक। जून में खाम तेल की पैदावार में यौमिया 4,11,000 बैरल का इजाफा किया जाएगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज। कराची में आज गर्द चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चली, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। खैरपुर और शिकारपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। मीरपुर खास डिवीजन में तेज हवाओं की वजह से आम के बागात को नुकसान पहुंचा। दादू में गर्द गुबार के तूफान से मुतादिद दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। नवाबशाह में घर की दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, खातून जख्मी हुई। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 1,26,500 तलबा के लिए 182 इम्तिहानी मराकज कायम। व्हाट्सएप पर पर्चा अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नकल में मुलव्विस तालिब इल्म को 3 साल के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड गुलाम हुसैन कहते हैं नकल माफिया और व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ FIA साइबर क्राइम की खिदमात हासिल हैं। PSL 10 के सनसनीखेज मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेट से हरा दिया। किंग्स ने 168 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। इरफान खान नयाजी के 21 गेंदों पर मैच विनिंग 48 रन। बारिश की वजह से कराची किंग्स को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 168 रन का हदफ मिला। इरफान खान कहते हैं खुद पर यकीन था मैच जितवा सकता हूं, ये मेरी बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी। ऐसे ही खेल की सलाहियत रखता हूं, लेकिन कुछ वक्त से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बुरे वक्त में कराची की मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। इरफान खान न्यासी ने नाकाबिल यकीन इनिंग्स के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का कहना था बारिश के बाद 44 रन देकर 7 विकेटें हासिल करना लाजवाब परफॉर्मेंस थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा हार जीत खेल का हिस्सा है। कराची की टीम अच्छा खेली इसलिए कामयाब रही, गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। नवा माली साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी शानदार रही। 10 माह में 42 अरब रुपए के महासिल जमा किए, जो गुज़िश्ता साल से 40% जायद है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं जुलाई से अप्रैल तक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में 32 अरब रुपए जमा किए गए। तीसरी बार अमरीकी सदर बनने का कोई इरादा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा बहुत से लोग मुझे तीसरी बार सदर देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अमरीकी आइन के मुताबिक भी कोई शख्स 3 बार अमरीकी सदर नहीं बन सकता। और ARY फिल्म सलमान इकबाल फिल्म और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लव गुरु का ट्रेलर जारी। रोमांटिक कॉमेडी ईद उल अज़हा पर बड़ी स्क्रीन पर धूम मचाएगी। हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट समेत स्टार कास्ट पर मबनी फिल्म का सबको इंतजार। फिल्म का ट्रेलर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान रिलीज किया गया।